नाउ लिसन केयरफुली बेटा, ये एक्सी का क्वेश्चन पेपर कैसा दिखा, हाउ द क्वेश्चन पेपर ऑफ एक्सी विल लुक लाइक, कैसा दिखाई देता है तो समझ लेते हैं बेटा. यू विल बी हैविंग इन एक्सी पेपर, you will be having total 65 questions. The paper will be of 100 marks, 3 hours. 3 घंटे का पेपर होगा, टोटल 65 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स का पेपर होगा. एक्सी की बात कर रहा हूं बेटा, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सी विच इज वन ऑफ द पेपर ऑफ गेट. दिस एक्सी पेपर विल बी डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस. ये जो एक्सी पेपर होगा ब्रॉडली इट विल बी डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस. फर्स्ट सेक्शन विल बी ऑफ जनरल एप्टीट्यूड. The weightage of general aptitude will be 15 marks out of 100. 5 questions of 1 mark, 5 questions of 2 marks. So 5 into 1 plus 5 into 2, 5 plus 10 is equal to 15. And the syllabus of the general aptitude will be similar to your mechanical general aptitude syllabus or maybe some other. Okay, general aptitude syllabus is same for all the papers. Now, remember, in engineering sciences, your engineering mathematics will be of 15 marks. Maybe in your mechanical it will be of 13 marks, whatever. But I am saying in engineering sciences, the weightage of engineering mathematics is 15 marks. And what is the distribution of these 15 marks? 7 questions of 1 mark, 4 questions of 2 marks. So 7 into 1 plus 4 into 2. 7 into 1 plus 4 into 2. 7 plus 8 is equal to 15. I hope everyone is clear till here. Now let us come to the third section. Now in this third section, you will be having few papers, few sections, B, C, D, E, F, G, H. Total 7 sections. ये जो तीसरा वाला टेक्निकल सेक्शन होगा यहां पर टोटल 7 सेक्शंस होंगे. B to H. A is given to engineering mathematics. Section A is named to engineering mathematics. B, C, D, E, F, G, H. Now out of these, A section is compulsory. A section is compulsory. Engineering mathematics is compulsory in engineering sciences paper. Now out of B, C, D, E, F, G, H. Out of these 7 sections, you have to choose 2. What are these 7 sections? I will be telling you. Now look at here, whatever the 2 sections you are choosing, the total marks of each section will be 35. 9 questions of 1 mark and 13 questions of 2 marks each. So 9 into 1 plus 13 into 2, 9 plus 26, 35. तो बेटा हो गए टोटल 100 मार्क्स. 15 marks for general aptitude, 15 marks for engineering mathematics. 15 plus 15 is 30. Now here you are choosing 2 technical sections, each of 35 marks. 35 plus 35, 70. 70 plus 30 is 100 marks. Now what are the varieties of questions? Of course, MCQ, multiple choice question, there will be negative of 33%, 1/3. Numerical answer type, there will be no negative marking. Multiple select question, MSQ, there will be no negative marking or part marking. I hope each and everyone is clear till here. अब ध्यान से सुनना, बेटा. Engineering mathematics is section A, which is compulsory. Now what is section B? Fluid mechanics. What is section C? Material science. What is section D? Solid mechanics. What is section E? Thermodynamics. What is section F? Polymer science and engineering. What is section G? Food technology. What is section H? Atmospheric and oceanic sciences. Now if you people are from the mechanical background, अगर अभी आप लोग जो देख रहे हैं लाइव, इफ यू आर फ्रॉम द मैकेनिकल, कितने लोग मैकेनिकल बैकग्राउंड से जो देख रहे हैं एक बार टाइप कर देंगे चैट बॉक्स में, हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम मैकेनिकल बैकग्राउंड. एंड इफ यू आर फ्रॉम द मैकेनिकल बैकग्राउंड, लेट मी टेल यू व्हाट आर द सेक्शंस रेलिवेंट फॉर यू. आपके लिए जो रेलिवेंट सेक्शन बनते हैं, एक तो बनता है फ्लूइड मैकेनिक्स, मटीरियल साइंस, सॉलिड मैकेनिक्स, thermodynamics. Now out of these 4, B, C, D, E, I will be advising you
to leave this part. This is not that much easy. Matlab, this is my personal opinion. If you feel you are very comfortable with the material science, you can go. But I will be asking you, if you are not very comfortable with the material science, then don't go with this, because here they will be asking the material science in very, very, very detail. If your expertise is in material science, then you can go. Now look at here. You will be ending up with three options: XCB fluid mechanics, XCD solid mechanics, XCE thermodynamics. Are you getting what I'm saying? Out of these three, you can choose any two depending on your interest. I will be discussing the syllabus also. I am going to discuss, and I will be taking your queries also. आपके queries भी लेने वाला हूं. I am going to take your queries also. Don't worry. आपके सारे questions का आंसर करके जाऊंगा रे बाबा. So remember, if you are from the mechanical background, my sincere advice to you is either you go for fluid mechanics XCB, solid mechanics XCD, or thermodynamics XCE. Now let us see the syllabus. Let us see the syllabus. एक एक करके मैं आपको सबका syllabus दिखाता हूं और आपको बताता हूं कहां पे difference है. I will be telling you the difference also. Let us see the syllabus of XCA first. What is XCA? Type in chat box रे बाबा. What is XCA? What is XCA? XCA is engineering mathematics. Now I will be telling you where the extra syllabus comes into the picture. Look at here beta. Diagonalization of matrices. सेक्शन 1 इज लीनियर अलजेब्रा. यहां पे आप लोग ये नहीं पढ़ते, ये आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा. सेक्शन 2 कैलकुलस, फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल्स आप लोग पढ़ते हो, फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स भी आप लोग पढ़ते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. सीक्वेंस एंड सीरीज, हां ये सीक्वेंस एंड सीरीज आप लोग नहीं पढ़ते हैं, ये थोड़ा एक्स्ट्रा सिलेबस है बेटा. मैं आपको बता रहा हूं व्हाट इज द एक्स्ट्रा सिलेबस यू पीपल आर हैविंग इन XCA. सीक्वेंस एंड सीरीज में मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत आप लोग 4 ईयर सीरीज थोड़ा बहुत पढ़ते हैं. अदरवाइज दिस, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से काफी क्वेश्चंस आते हैं. ओके, नाउ लुक एट हियर. वेक्टर कैलकुलस एनीवेज आप लोग पढ़ते हैं, देयर इज नो डाउट. इन मैकेनिकल यू आर स्टडिंग वेक्टर. कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स पूरा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओडी आल्सो यू पीपल आर लर्निंग, लेकिन यहां से आइगन वैल्यू प्रॉब्लम्स फॉर सेकंड ऑर्डर इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट पावर सीरीज हो सकता है, यहां से आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़े. पीडी आप लोग पढ़ते हैं, लेकिन ध्यान से देखना बेटा, ये थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर XCA इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ऑफ इंजीनियरिंग साइंसेज, 1 डायमेंशनल हीट इक्वेशन एंड 2 डायमेंशनल लाप्लास इक्वेशन, ये आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है रे बाबा. प्रोबेबिलिटी तो आप पढ़ते ही हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है. हो सकता है यहां पे ये कोरिलेशन वाला पार्ट आपको और डिटेल में देखना पड़े, ठीक है. न्यूमेरिकल मेथड्स एनीवेज नो प्रॉब्लम. तो बेटा ये कुछ मैंने आपको टॉपिक बता दिए. दीज आर द टॉपिक्स विच जनरली यू डोंट सी इन मैथमेटिक्स ऑफ मैकेनिकल और यू आर नॉट डीलिंग इन डिटेल. तो इन टॉपिक्स पर आपको मेहनत करनी है इफ यू आर प्लानिंग टू राइट XC पेपर इंजीनियरिंग साइंसेज. सर अब ये बताओ सर क्वेश्चंस कैसे आते हैं बेटा. as far as mathematics section of XC is concerned, it will be little difficult. 100% आपके जो मैकेनिकल के क्वेश्चन होते हैं उससे थोड़ा सा अपर हैंड पे रहने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है. मैथमेटिक्स XCA will be little difficult as compared to your mechanical mathematics. क्या क्या एक्स्ट्रा टॉपिक्स है मैंने पूरा बता दिया आपको. आई हैव गिवन यू द एक्स्ट्रा टॉपिक्स. यहां पर लीनियर अलजेब्रा में ये टॉपिक है डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिसेस. ये सीक्वेंस एंड सीरीज वाला पार्ट थोड़ा एक्स्ट्रा है. यहां पर आपको सेकंड ऑर्डर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट पावर सीरीज सॉल्यूशंस ऑफ ऑर्डिनरी पॉइंट्स ये आपको देखना है. यहां पे 1D हीट इक्वेशन, 2D लाप्लास इक्वेशन आपको थोड़ा डिटेल में देखना है. आपको कोरिलेशन एंड लीनियर रिग्रेशन आपको थोड़ा डिटेल में देखना है. आई होप ईच एंड एवरीवन इज क्लियर विद मैथमेटिक्स सिलेबस. एक एक चीज क्लियर करने वाला हूं बेटा. यहां तक सब लोग क्लियर हैं? आर यू क्लियर विद द सिलेबस ऑफ XCA इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स? क्या एक्स्ट्रा पढ़ना है आपको पता चल गया? बहुत ही डिटेल में लेकर जाने वाला हूं बेटा. आपके एक एक क्वेरी क्लियर करने वाला हूं. सर विल XCA इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स be little difficult? Yes, of course it will be little difficult as compared to your mechanical engineering mathematics. चलो, now let us come to XCB fluid mechanics. यहां पर क्या एक्स्ट्रा है?
यहां पर क्या एक्स्ट्रा है, फ्लूइड प्रॉपर्टीज बिल्कुल पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लोज बिल्कुल पढ़ते हैं, हाइड्रोस्टैटिक बिल्कुल पढ़ते हैं, काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड मोशन बिल्कुल पढ़ते हैं, इंटीग्रल एनालिसिस फॉर कंट्रोल वॉल्यूम। यहां पे ये जो आरटीटी है ना, ये आरटीटी थोड़ा सा हमको देखना है, रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम, अदरवाइज सब कुछ सेम है। डिफरेंशियल एनालिसिस नो प्रॉब्लम, थोड़ा यहां पे अच्छे से देख लेना। जनरली आप लोग कॉटी फ्लो ढंग से नहीं देखते हो, तो कॉटी फ्लो देख लेना। एंड ऑफ कोर्स दिस इज द एक्स्ट्रा टॉपिक थिन फिल्म फ्लो, है ना। बाकी लगभग सब कुछ हम लोग पढ़ते हैं रे बाबा। डायमेंशनल एनालिसिस नो प्रॉब्लम, ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी आर सीइंग इन मैकेनिकल, इंटरफ्लोज, इंटरनल फ्लोज सब कुछ देख रहे हैं रे बाबा। बर्नौलीज इक्वेशन एंड इट्स अजम्पशन, हाँ ये पोटेंशियल फ्लो वाला अलग हो गया। जनरली मैकेनिकल में हम लोग इतना डिटेल में नहीं जाते, इन मैकेनिकल वी डोंट गो इन मच ऑफ डिटेल। चलिए और क्या है, प्रेंडल बाउंड्री लेयर इक्वेशंस बिल्कुल देखते हैं, बाउंड्री लेयर कैरेक्टरिस्टिक्स नो प्रॉब्लम, क्वालिटेटिव आइडिया यस, ये सब पढ़ लेते हैं। ड्रैग एंड लिफ्ट को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना। तो बेटा एक्सीबी में कुछ टॉपिक्स निकल कर आ गए। एक्सीबी में नाउ देयर आर फ्यू टॉपिक्स विच वी नीड टू स्टडी, विच वी नीड टू फोकस। आरटीटी पे थोड़ा फोकस कर लेना, आरटीटी पे फोकस कर लेना। एग्जैक्ट सॉल्यूशंस ऑफ नेवियर स्टोक्स इक्वेशन फॉर कॉटी फ्लो, थिन फिल्म फ्लो पे फोकस कर लेना, है ना। पोटेंशियल फ्लो पे फोकस कर लेना। आई होप नाउ यू आर क्लियर। एक्सीबी फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या देखना है आपको समझ में आ गया। आई होप ईच एंड एवरीवन इज क्लियर व्हाट यू नीड टू सी विद एक्सीबी। एक्स्ट्रा चीज आपको समझ में आ गई, फटाफट से टाइप करेंगे रे बाबा चैट बॉक्स में, आर यू क्लियर विद दिस, व्हाट यू नीड टू डू एक्स्ट्रा इन एक्सीबी। XCE, let us go to XCE thermodynamics, no problem, बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ते हैं, FLT पूरा पढ़ते हैं, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पूरा पढ़ते हैं, कोई चेंज नहीं है रे बाबा, सेम है। प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेस पूरा पढ़ते हैं, थर्मोडायनामिक रिलेशंस पूरा पढ़ते हैं रे बाबा। एवरीथिंग वी आर स्टडिंग एज फार एज मैकेनिकल इज कंसर्न। हाँ अब देखो बेटा यहां पर ध्यान से सुनना, दिस इज वेरी कॉमन क्वेरी विच स्टूडेंट्स आर आस्किंग मी। ये जनरली बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को पूछते हैं और मैं आपको यहां पर क्लियर कर देता हूं। बेटा यहां पर इन इंजीनियरिंग साइंसेज द मीनिंग ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज आल्सो इंक्लूडेड। बेटा ये थर्मोडायनामिक साइकिल्स है ना, जो ये आपका एटीडी वाले पार्ट में आता है। इफ यू सी द मैकेनिकल सिलेबस इट विल बी कमिंग इन एप्लीकेशंस पार्ट, रैंकाइन साइकिल, रीहीट, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, ब्रेटन साइकिल, वीसीआरएस। तो याद रखना व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, whatever the syllabus you are having in mechanical, whatever the syllabus you are having in mechanical for thermodynamics plus applications of thermodynamics, that is the syllabus of XCE thermodynamics. I hope each and everyone is clear. सबको समझ में आ गया होगा बेटा। I hope each and everyone is clear. बोलो रे बाबा यहां तक सब लोग क्लियर हैं। थर्मोडायनामिक्स में एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो आप मैकेनिकल में नहीं पढ़ते हो। ईच एंड एवरीथिंग यू आर लर्निंग इन मैकेनिकल। The only thing you have to understand in mechanical you are having two parts, thermodynamics and applications part. यहां पर XCE में थर्मोडायनामिक्स के अंदर ही आपको एप्लीकेशन पार्ट दिया है, साइकिल्स दी हुई हैं, आपका R&AC वाला पार्ट भी दिया हुआ है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग बेटा? सबको क्लियर हो गया? आई होप ईच एंड एवरीवन इज क्लियर। बेटा मैं दे दूंगा, जिनको सिलेबस चाहिए मैं सिलेबस दे दूंगा, डोंट वरी अबाउट दिस पार्ट। एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो आप मैकेनिकल में नहीं पढ़ते हो। ईच एंड एवरीथिंग यू आर लर्निंग इन मैकेनिकल। नाउ हियर लेट मी आंसर यू वन मोर थिंग। काफी लोग मुझे पूछते हैं सर हाइड्रोलिक मशीन सिलेबस में है क्या? नो बेटा, हाइड्रोलिक मशीन्स इज नॉट इन द सिलेबस ऑफ इंजीनियरिंग साइंसेज। याद रखना हाइड्रोलिक मशीन्स नहीं है, फ्लूइड मशीनरी नहीं है। इट इज नॉट देयर इन सिलेबस। बात समझ में आ गई? नाउ लेट अस कम टू XCD सॉलिड मैकेनिक्स। अब बेटा ये जो सॉलिड मैकेनिक्स वाला पार्ट है ना, सिलेबस देखने में तो बहुत छोटा है, but it is the combination of three subjects. Like your thermodynamics is the combination of thermo plus ATD part. Here it is the combination of three subjects. Of course,
मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज, मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज, और यहां पर वाइब्रेशंस का पार्ट भी है। तो बेसिकली आपकी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स एंड वाइब्रेशंस है। लेकिन सिलेबस आपने पढ़ा हुआ है, सिलेबस ऑलरेडी यू नो, ऐसा कोई सिलेबस नहीं है कि आपको नहीं पता होगा। तो एवरीवन नाउ नो द सिलेबस, है ना, एवरीवन इज नाउ अवेयर ऑफ द सिलेबस। सिलेबस सबको पता है, सिलेबस सबको पता चल गया। अब सर ये जो सिलेबस एक्स्ट्रा है कहां से होगा? बेटा दोज हु आर गोइंग टू चूज XCB fluid mechanics and XCE thermodynamics, I am going to cover each and everything। जो लोग मेरे से पढ़ेंगे, जहां पर भी पढ़ेंगे, मे बी ऑन अनअकैडमी प्लस जहां पे मेरा थर्मो चल रहा है, वहां पर मैं सारे के सारे टॉपिक्स कवर करने वाला हूं, और मे बी ऑन यूट्यूब। डोंट वरी, इफ एट ऑल आई एम गोइंग टू टीच, आई एम गोइंग टू कवर ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू एक्सेस सिलेबस। उसके लिए आपको चिंता ही नहीं करनी है। ओके, ठीक है, ठीक है, चलो।